اسکول میں بیٹھ کے اردو ناول اردو کہانیاں پڑھتے تھے. پریم چند تو اور کرشن چندر اور بلونت سنگھ وہ یہ سب ہمارے لیے اتنا اچھا تھا, وہ ماحول ہی الگ تھا. اب پتہ نہیں لوگ کیا پڑھتے ہیں کیا نہیں پڑھتے, پڑھنے کا شوق ختم ہو گیا ہے. اور بچے وہ اس میں الجھے ہوئے ہیں, موبائلز پہ کیا دیکھتے ہیں. ناظرین, صدائے ہند اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں امتیاز اللہ خان کاشفی. نیا ادب بنگلور کے زیر اہتمام ایک رنگا رنگ ادبی محفل یہاں سمد ہاؤس ہال میں چرنجیت سنگھ IAS وظیفیاب کی صدارت میں منشی پریم چند ایک مطالعہ اور اسی شب مشاعرہ کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر آف پولیس وظیفیاب ND ملا نے تفویض ایوارڈ برائے ترہیم مشاعرے کے اہم رول ادا کیا. منجو وینکٹ پریم چند کے اب 3 افسانے ماہر منصور, ملنسار اطہر احمد, محمد اعظم شاہد نے مختصر تعارف کیا. مہمان خصوصی ڈاکٹر اجے کمار سنگھ IPS وظیفیاب موجود رہے. مہمان اعزازی IC مشرا شریمتی متھیلی راؤ عزیز اللہ بیگ IAS وظیفیاب موجود رہے. اس موقع پر نیا ادب زمینہ کا اجرا بدست چرنجیت سنگھ کے ہاتھوں عمل میں آیا. گلوکار مختار خان نے منظریں پیش کی اور نظامت کے فرائض محمد اعظم شاہد نے ادا کیا. اس موقع پر مدعو اردو شعراء ترہیم مشاعرہ میں اپنا کلام پیش کیا. ہندی, انگریزی اور کنڑا اپنا منتخب کلام بھی پیش کیا. مشاعرہ پروگرام کی نظامت منیر احمد جامی نے ادا کیا. جناب اعجاز علی جوہری نے شکریہ ادا کیا. اس طرح کے پروگرامز ہونے چاہیے. تو ہمارے ملا صاحب جو ہے, مجھے 15 دن پہلے جو ہے ملاقات ہوئی تھی. انہوں نے پرپوز کیا کہ ہم لوگ جو ہے اس طرح سے پروگرام کرنا چاہتے ہیں جس میں ہندی, اردو, کنڑا, انگلش سب طرح کی پوئٹری ہو, مشاعرہ ہو اور کبھی سمیلن ہو اور تقاریر ہو. تو اور اس میں جو ہے ایک دوسرے کو ملنے کا موقع مل جاتا ہے, جانے پہچانے. تو پہلی بات انہوں نے کہا کہ ہم کو 50 سے 60 آدمی جمع ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. تو میں تعجب کرتا ہوں کہ انہوں نے 100 کے اوپر جو ہے سامعین کو جمع کیا اور پروگرام بہت ہی اچھا رہا. ہندی کبھی جو ہے وہ بھی اچھی طرح سے انہوں نے جو ہے پیش کیا کویتا. اور کنڑا جو ہے ہمارے بادشاہ صاحب نے جو بہت اچھا پیش کیا. اور اردو کے شعراء بھی جو ہے حضرات جو ہے انہوں نے بھی اچھا کیا. اردو کے پروگراموں میں آپ کا خاص دخل رہتا ہے. تو میں جو ہے 15 سالوں میں جو ہے 15 سال سے جو ہے یہ یوم اردو کا پروگرام کرتے رہے ہم لوگ. تو شعر و شاعری, مشاعرے سب ہم لوگ منعقد کرتے رہتے ہیں. تو میں اس میں جو ہے ایک چھوٹا سا اردو کا خادم ہوں. اور میرے ساتھی جو ہے ہیں جیسے ملا صاحب ہیں, خلیل مامون ہیں, شائستہ یوسف میڈم ہیں اور دیگر حضرات ہیں. ان کا ساتھ لے کر جو ہے محفل نساء ان کے ساتھ لے کر یہ پروگرامس جو ہے ہم لوگ منعقد کرتے رہتے ہیں. اب ہمارا جو ہے ہم سوچ رہے ہیں کہ ہر 3 ماہ 6 ماہ ہی ایک پروگرام ہو جس میں جو ہے طرح طرح کے جو ہے شعر و شاعری ایک یہ ہو, مشاعرہ ہو اور کوی سمیلن ہو اور دیگر تقاریر ہوں جس میں اردو, کنڑا, ہندی. کیونکہ تھوڑا جو ہے اردو جو ہے ہم کو جو ہے ایک تعصب جو ہے لگ گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اردو جو ہے مسلمانوں کی زبان ہے. آج جو ہے موقع ملا کہ پریم چند کا جو ہے ایک سبجیکٹ ہم لوگوں نے اس کو لے کے آ کے سب کے سامنے بڑے چھوٹوں سے سب جو ہے تقاریر کے اور افسانے جو ہے جو پریم چند کے افسانے جو ہے ان کو پڑھوایا. تو بہت ہی کامیاب رہا اس کا پروگرام. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا بھی جو آپ نے اس کو کور کیا. میرے نزدیک آج کے مقصد ایک تو ادبی اپنی جگہ ہے ہی, دوسرا ایک عجیب قسم کا یہ نئی اس دور میں ایک نیا رجحان ہے کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان ہے, اس لیے اردو کو ختم کرو, اردو کی ثقافت کو ختم کرو, مسلمان خود بخود ختم ہو جائیں گے. مطلب اگنورنٹ پیپل. میں باہوش ابھی آپ نے دیکھا کئی شاعراء مسلمان نہیں ہے مگر اتنی اچھی فصیح اردو میں شاعری کر رہے ہیں. اور مسلم و چاند پاشا کنڑا میں شاعری کر رہا ہے.
वो मुस्लिम औरत अंग्रेजी में शायरी कर रही है। मतलब शायरी जुबान खास करके उर्दू का ताल्लुक किसी मजहब से कभी नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा। हमारे पास टिल रिसेंटली आज भी ऐसे शोरा मौजूद हैं जो उर्दू में शायरी करते हैं, हिंदी कन्नड़ा में नहीं करते। अब मिसाल के तौर पे प्रेमचंद जी, खैर अभी ये नया ट्रेंड है कि उन्हें हिंदी का वो कहा जाता है, मगर जब उनकी जुबान आप पढ़ते हो, उनकी वो बड़े घर की बहू, ये वो क्या जुबान है, वो हिंदी नहीं है, वो हिंदुस्तानी है, वो उर्दू है। वो मुसलमान नहीं थे, रघुपति राय सहाय, फिर या चिकबस्त, फिर ऐसे ही मतलब मैं गिनाता रहूं तो हजारों ऐसे हैं जो उर्दू में शायरी करते हैं। उर्दू को मुसलमानों की जुबान कहना, हाँ मेजॉरिटी ऑफ मुसलमान उर्दू बोलते हैं। वो भी कौन सी उर्दू, दक्कन की अलग उर्दू है, बेंगलुरु की अलग उर्दू है, लखनऊ की अलग है, आगरा की अलग है, बिहार पटना की अलग है, उड़िया की अलग है, आसाम की अलग है। उर्दू मतलब अलग अलग उर्दू है, अलग अलग लहजा है, अलग अलग। अब तुम गुलबर्गा को जाओ, सारी कन्नड़ा में उर्दू है, या फिर तुम कोलार में जाओ, सारे कन्नड़ा में तेलुगु है। तो जुबान को इस तरह मजहब का नाम देना गलत है। तो हमारी ये काविश थी कि लोगों के सामने लाएं गाहे बगाहे स्लोली कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जुबान नहीं है, उर्दू हिंदुस्तान की जुबान में है। यही वो उसका वो हुआ, यही पैदा हुई, यही पली बड़ी, और यही उसका वो यही रहेगी और कहीं नहीं जाएगी, यही रहेगी। बल्कि पाकिस्तान में उर्दू है नहीं, उर्दू हालांकि वहाँ सरकारी जुबान में है। पाकिस्तान में या तो सिंधी है, या तो पंजाबी है, या तो बलूची है, या तो मतलब अलग अलग जुबानें हैं। भी तो बोला नहीं आता। हाँ, तो उर्दू जो है, खैर जिन्ना साहब की वजह से उर्दू वहाँ की अच्छी बात है, मैं उसके बारे में नहीं कह रहा हूँ। तो उर्दू जो है वो आलमी जुबान है, भाईचारगी की जुबान। तुम अगर उर्दू तुम जानते हो, मतलब उर्दू वो फसी वाली उर्दू, फारसी वाली उर्दू, अरबी वाली उर्दू नहीं, अगर तुम ढंग की हिंदुस्तानी उर्दू जानते हो, सारी दुनिया में कहीं भी जाके तुम वापस आ सकते हो इस एक जुबान की वजह से। बाकी की तुम्हें अंग्रेजी ने आए कोई बात नहीं। ये इसलिए हम हमारी एक काविश है, कोशिश है कि हम इसको लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि उर्दू सिर्फ हमारी जुबान नहीं है, सबकी जुबान है, एक सकाफती जुबान है। मैं इसमें खलील मामून साहब हैं, अपने एजाज अली हैं, या फिर माहिर मंसूर हैं, या फिर अपने शकील पाशा साहब हैं, और फिर शाहिद हैं, मिलनसार साहब हैं, और कई ये सब जो कोर ग्रुप है, शाइस्ता आज नहीं आई हैं, वो शाइस्ता हैं। ये सब लोगों ने इसको एक बार अभी मैं एक बात बताना चाहूँगा। अभी हम लोग मिले थे परसों, तो मैं कह रहा था कि उर्दू के तय मतलब मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं, चलो भाई नहीं है, उर्दू नहीं है, मगर जब हम तो हैं, जब तक हमें उर्दू को रखेंगे, बाद में हम मरने के बाद में चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं उनसे ये भी कह रहा था कि कल अगर मैं मर जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं है, कल अगर सुबह में मैं नहीं हूं, इंडी मुल्ला नहीं है, कोई गम नहीं है, मगर एक गम मुझे ये रहेगा कि मैं मरने के बाद में फैज को नहीं पढ़ सकूंगा, गालिब को नहीं पढ़ सकूंगा, फराज को नहीं पढ़ सकूंगा, उर्दू नहीं पढ़ सकूंगा। तो यही मतलब उर्दू से हमारी चाहत इस वक्त तक है। शुक्रिया सर। अभी आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी कौन है सर? मेहमान खुसूसी कौन है? मेहमान खुसूसी हमारे चिरंजीवी साहब हैं, या हमारे अजय कुमार सिंह साहब हैं। मेहमान खुसूसी तारिक नॉन मुस्लिम ही है, हम कोई मेहमान, हम तो सिर्फ मेजबान थे, हम तो सिर्फ मेजबान थे। तो शुक्रिया सर, आपने जो है उर्दू की तरक्की, इसकी बहाली और उसकी तहफ़्फ़ुज़ में सेकुलरिज्म की पासदारी करते एक बड़ा अच्छा अनोखा प्रोग्राम मुनक़िद किया है सर। शुक्रिया सर। शुक्रिया सर। आज के इस प्रोग्राम से क्या पैगाम? बहुत मुसरत हुई, प्रेमचंद के ऊपर प्रोग्राम आज किया गया, और प्रेमचंद हिंदुस्तानी तहजीब के बहुत बड़े एक सिंबल हैं, तो उनको याद करना, उनके अदब को पढ़ना और नई जनरेशन तक उसको पहुंचाना ज़रूरी काम। उर्दू को लेकर के आप जो है बहुत सारे बातें सामने आए। जी, वो तो मैंने कहा ना कि ज़बान के लिहाज से भी प्रेमचंद को बिल्कुल याद किया जाना चाहिए कि ज़बान
किस तरह की होनी चाहिए, अरबी ज़बान कैसी हो, वो हिंदी हो या उर्दू, तो वो दोनों में बराबर लिखा उन्होंने, और दोनों के वो अफसाने के बादशाह थे, हिंदी में भी और उर्दू में भी। तो इसलिए हिंदी और उर्दू की एक जो कहिए एक मिली जुली जो कल्चर है उसके वो रिप्रेजेंटेटिव हैं। सर, मौजूदा हालात के पेश नज़र उर्दू को किसी एक इनकलाबी मजहब से जोड़ने का, अब देखिए उर्दू तो सारे हिंदुस्तान की ज़बान है, हिंदुस्तान की ज़रज़मीं से पैदा हुई है, हिंदुस्तान की सरजमी पे उर्दू है, तो हिंदुस्तानी ज़बान है। इसके बारे में तो अगर जब तक लोग अपने घर में और बाहर भी उर्दू का इस्तेमाल करते रहेंगे तो उर्दू डेवलप होती रहेगी। आज का जो अदबी प्रोग्राम हमारा जो था वो प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद पर था, जो कि एक हिंदी के बहुत ही मशहूर और नए अहद के पहले अफसाना नवीस और नावल निगार थे। और उनकी अहमियत यह है कि वो हिंदी और उर्दू दोनों में लिखते थे, और ये कहना कि हिंदी और उर्दू दो अलग ज़बानें हैं वो गलत है। वो एक मुश्तरका तहज़ीब का हिस्सा थे। तो इसी को नुमायाँ करने के लिए हमने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। और इस प्रोग्राम में जैसा कि आपने देखा, चिरंजीवी सिंह का IAS ऑफिसर जो पंजाब से हैं वो आए, और अजय कुमार सिंह जो एक IPS ऑफिसर हैं जो UP से हैं वो आए, और हमने यहाँ के मकामी विद्याचंद्र शर्मा मिश्रा को बुलाया जो कि हिंदी के स्कॉलर हैं, और एक मैथिली राव जो हिंदी की स्कॉलर हैं उनको बुलाया, फिर अजीज़ुल्लाह बेग जो IAS हैं उनको बुलाया, और फिर हमने तरही मुशायरे पर एक मुकाबला, तरही गज़ल पर एक मुकाबला रखा कि जिसमें हमने 5,000 रुपये का इनाम दिया आज सैयद शफ़ीक़ उज़्ज़मा शफ़ीक़ को, जो 60 गज़लों में से उनकी बेहतरीन गज़ल थी। आज का प्रोग्राम बहुत ज़रूरी था, ख़ास करके इस ऐसे हालात में जब समाज में इतना तनाव रहता है, इतनी डिफरेंसेस की भावनाएं रहती हैं। बहुत बढ़िया प्रोग्राम था। पहली बार मेरे एक्सपीरियंस में रहा कि उर्दू और हिंदी पे चर्चा एक ही छत के नीचे हुई, एक ही मंच पे हुई, और इससे ज़्यादा खुशी का मौका क्या हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ज़ुबानें जो हैं वो हमारी अपनी देश की ज़बान है। इसी एक ही माँ से पैदा हुई हैं ये दोनों ज़बानें, और इसमें जो भी अफसाना निगाहों ने बहुत बढ़िया बढ़िया अफसाने पेश किए, कविताएं पेश की, गज़ल पेश की, बहुत बढ़िया नज़म रही। वंडरफुल एक्सपीरियंस। एंड ये मेरी एक आई वुड से एक तमन्ना रहेगी कि अपने समाज को मिला के रखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए ऐसे कार्यक्रम बार बार हो। और दिस इज़ अ मैसेज टू द सोसाइटी, टू द यूथ, टू कम फॉरवर्ड एंड एम्ब्रेस डिफरेंसेस। आपका पूरा नाम? मेरा नाम संध्या है और मैं बेंगलोर में हूँ, बड़ी बड़ी दिल्ली में हूँ, और यहाँ बेंगलोर के मंच में हिंदी और उर्दू एक ही मंच पे एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू। शुक्रिया। आज जो है नया अदब के ज़ेर एहतमाम एक तरही मिसरा दिया गया था। ये जो है इनामी मुकाबला का मुशायरा तरही मिसरा दिया गया था। गालिब की गज़ल का मिसरा है कि मैं नहीं जानता दुआ क्या है, ये मिसरा दिया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी है कि मुझे जो है अव्वल इनाम एजाज़ जो है हासिल हुआ है। उर्दू जो है इस मुल्क की सबसे प्यारी, सबसे अच्छी ज़ुबान थी, मीठी ज़ुबान थी। उसके लिखने वालों को उर्दू से हिंदी की तरफ क्यों रुजू करना पड़ा, वो कौन से हालात थे,
तारीख़ी हालात हैं, उनको समझने की ज़रूरत है। आज भी उर्दू का ये मसला हमारे सामने है। उर्दू को हिंदी से जुदा, हिंदी को उर्दू से जुदा समझा जाता है, हालांकि दोनों एक ही ज़ुबान है और उसके दो तरह की उसकी मंजिलें तय हो रही हैं, उसका फ़रोग़ भी हो रहा है। अच्छी बात है कि हम अपने शाहकार अदीबों को याद करें, उनका जश्न मनाएं, और मैं समझता हूँ कि ये प्रेमचंद की खिदमत में बहुत अच्छा खराज तहसीन है। इसके लिए मैं एक बार फिर मुंतज़मीन को और ख़ास तौर पर एंडी मुल्ला साहब को, एजाज़ अली को और उन तमाम हज़रात को जो इस कामयाब महफिल को सजाने के लिए ज़िम्मेदार हैं, मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी दो बातें खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लूरलिज्म और हमारी हिस्ट्री में सिंक्रेटिज्म भी था, जो अलग अलग धर्मों को ब्लेंड करते थे। तो हमारे लिटरेचर में काफ़ी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद जी के अकाउंट्स में एग्जाम्पल्स हैं जो हमें सामने रखने चाहिए, क्योंकि कई लोग आजकल कह रहे हैं कि जो हमारा संविधान है वो इम्पोर्टेड है, यूरोप से आया है। तो मेरे ख्याल में जो हमारी इंडिजिनस, हमारे इंटेलेक्चुअल कल्चरल नैरेटिव्स हैं, उसकी सोच से ही ये बनाया गया है। तो क्योंकि मैंने कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की कोशिश की है, जापान से लेकर चिली तक के, तो जो हमारे पास है उसको मुझे लगता है कि जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो इंटेलेक्चुअली हमें एंगेज करना पड़ेगा, और हमारे लिटरेरी और बाकी जो साहित्यकार हैं उनको ढूंढना पड़ेगा हमारे लिटरेचर के अंदर, हमारी हिस्ट्री के अंदर, और जाहिर करना है, एविडेंस लाना है कि किस प्रकार से हमारा संविधान हमारी मिट्टी के साथ है। शुक्रिया। उर्दू के ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इनके बराबर की मेरा ख्याल शायर बहुत कम है किसी भी ज़बान में। जैसे मुझे जहन में कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं। उड़िया में रमाकांत राज साहब हैं, लिखना तो खैर उनका तकरीबन बंद हो गया है। पंजाबी में अच्छे हैं सुरजीत पात्र और जसवंत ज़फ़र। तो मामूद साहब ने ये जो नया अदब शुरू किया है, मैं समझता हूँ इसके ज़रिए अदब की खुशबू चारों तरफ फैलेगी, नए अदब की खुशबू। अब प्रेमचंद के बारे में तो बहुत कुछ कहा जा चुका है। मेरा ख्याल है प्रेमचंद की जो 3 कहानियाँ पढ़ी गई हैं वो उनकी बेहतरीन कहानियाँ हैं। यानी प्रेमचंद हिंदुस्तान के अफसाना निगार जो हैं उनमें से बहुत अफसानों के बादशाह हैं, और हिंदुस्तानी अफसानों की बुनियाद रखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर को हम कह सकते हैं, क्योंकि टैगोर साहब ने कहा था कि मेरे सामने कोई मॉडल नहीं था जिसको लेके मैं चला। अपने अफसानों के बारे में उन्होंने कहा, तो मैंने अपना मॉडल खुद ही तैयार किया। और उनके बाद प्रेमचंद आए और उन्हीं के साथ कन्नड़ा में वाले जानते हैं मास्ती वेंकटेश अयंगार आए। तो ये मैं समझता हूँ ये 3 लोग जो कंटेम्प्रेरी कह सकते हैं, तो इन लोगों ने हिंदुस्तानी अदब में अफसानों की बुनियाद रखी। और प्रेमचंद के बराबर के अफसाने हिंदी में और उर्दू में कहाँ लिखे? 3 अफसाने तो आपने अभी सुने। और मुझे याद है कि पहली दफ़ा मैं उस वक्त स्कूल में था, हाई स्कूल में, जब ईदगाह मैंने पढ़ी। उससे पहले शतरंज के खिलाड़ी वगैरह पढ़ चुका था, लेकिन ईदगाह जब पहली दफ़ा पढ़ी तो आंसू आ गए। अफसाना नहीं ऐसा है, आप उसको पढ़ें तो पत्थर दिल भी पिघल जाएगा, वो ऐसा अफसाना है।
शतरंज के खिलाड़ी हों या ईका है कफन की या दो बैलों की कहानी जिसका आगे जिक्र किया गया, मेरी फेवरेट कहानियों में से एक है दो बैलों की कथा। पंच परमेश्वर ने कहा किस किस का नाम लीजिएगा। और जहाँ तक नावलकारी का सवाल है, अब गोदान के बराबर लिखे गए हैं और ज़मानों में भी जैसे चारू चंद्र ने खजानी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी में है या राग दरबारी कह सकते हैं कि गोदान की टक्कर भी लिखे गए हैं, लेकिन प्रेमचंद है। और प्रेमचंद को याद करना इसलिए भी जरूरी हो गया है कि जैसे सिंह साहब ने अभी कहा, प्रेमचंद जिस तहजीब के नुमाइंदे थे वो तहजीब के ऊपर ही आजकल अटैक हो रहा है। पाकिस्तान के एक नक़ाद हैं मोहम्मद उमर मैनन। मोहम्मद उमर मैनन ऑक्सफोर्ड सीरीज ऑफ पाकिस्तानी लिटरेचर के एडिटर हैं और ये हसन मंजर की अफसानों की किताब की इंट्रोडक्शन में वो लिखते हैं, ये अफसाने इंग्लिश में हैं उनके। अब मुझे ख्याल है कि उर्दू से इनका तर्जुमा इंग्लिश में हुआ है, उन्होंने लिखा ही इंग्लिश में है, लेकिन ये जो महमद साहब ने लिखा है उसमें वो कहते हैं बोथ इन हसन मंजर एंड प्रेमचंद the preoccupation with victimized people and their fate has often resulted in inadequate attention to the technical requirements of their art. प्रेमचंद के बारे में ये बात कहना मेरी समझ में नहीं आता कि एक नक़ाद कैसे कह सकता है, लेकिन इसके बारे में आगे आते हैं। Technical requirements of their art to honing and refining the narrative to reflect more effectively their larger societal concerns. This is more true of Premchand than of Hasan Manzar. यानी वो हसन मंजर को टेक्निकली प्रेमचंद से ऊपर रख रहे हैं, जैसा कभी मैं तो नहीं सोच सकता। और वो कहते हैं it is hard to avoid the impression। बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब मुल्ला साहब का, जिन्होंने मुझे शुक्रिया अदा करने का मौका इनायत फरमाया। ये पहली बार इन्होंने एक कन्वीनर के हैसियत से जो है इतना अच्छा जो है ऑर्गेनाइज किया है। मुझे ताज्जुब होता है जब हमारी मीटिंग हुई पहली बार कि अगर सक्सेसफुल होता है 25 आदमी जमा होते हैं, 50 सामीन जमा होते हैं, तो मुझे ताज्जुब हुआ कि आज जो है 100 से ज़्यादा, सेंचुरी से ज़्यादा जो है सामीन इसमें जमा हो गए। बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज है। इसके पीछे एक थोड़ा राज भी है, हो सकता है हमारे खलील मामून साहब की जो है गाइडेंस भी। तो उस्ताद शागिर्द तो है पुलिस डिपार्टमेंट में ठीक है, नहीं ऑर्गेनाइजेशन में ठीक है। मैडम का भी है, वो मैडम का जो है एक जोक सुना देता हूँ। हजरात जो है अपनी खवातीन अपनी बीवियों को जो है लाखों रुपए हजारों रुपए देते हैं, जब वापस मांगते हैं 10,000 क्या 500 रुपए भी देने में कतराते हैं, मगर उससे बगैर भी काम नहीं चलता। कभी कभी हम जो है फजूल खर्च करके इधर उधर हो जाता है, तब जो है खजाना जो है मैडम के पास बीवियों के पास होता है, महफूज होता है, बड़ा वक्त पे काम आता है। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले हमारे सदर साहब गायब हैं, उन्होंने टाइम वक्त निकाला। चिरंजीवी साहब इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो भी एक जो है कल्चरल प्रोग्राम्स और इस तरह के उर्दू हिंदी प्रोग्राम के वो भी जो है बहुत ही आगे बढ़ के जो है हिस्सा लेते रहते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे अजय सिंह साहब IPS रिटायर्ड, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे दीगर मेहमान खुसूसी, उसमें स्मृति मालती राव
जनाब अजीजुल्लाह बेग साहब और जनाब IC विद्यासागर साहब, जनाब हमारे एक वीरेंद्र पाल सिंह जो इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी शख्सियत है, वो हैं हिंदुस्तानी मगर बहुत रिसर्च में बहुत काम किया है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब आजम शाह साहब ने जो अपना निजामत का काम जो है संभाला, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उर्दू और हिंदी और कन्नड़ शोरा हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे शर्मा साहब ने जो है हिंदी कविता मतलब जो है उन्होंने सुनाई, मगर उर्दू के लफ्ज जो है बहुत इस्तेमाल किए, उर्दू ही है वो तो उनका तो हमारे और एक मिसर जो है सिंगाल मैडम जो है, उन्होंने जो है बहुत अच्छा कविता सुनाई, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे बादशाह जो है कन्नड़ा में रिसर्च कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जामी साहब, उनके बगैर तो आजकल का जो है प्रोग्राम करना बहुत ही मुश्किल है। तो हमारे मुल्ला साहब को आप इस तरह से जो ऑर्गेनाइज किया है, ये हमारे लिए एक चार पहियों में एक टेबल के मेन पहिया ये है, तो इनकी एक पकड़े तो शायद इंशाल्लाह जो है हमारे प्रोग्राम कामयाब रहेंगे, हो जाएंगे, क्योंकि ऑडियंस को जमाना इनको भी आता है। मुझे नहीं मालूम कि डरा के लाए हैं या धमका के लाए हैं या रिक्वेस्ट के लाए हैं मैं इसके अंदाज में कह रहा हूँ, दोस्ती इनकी जो है काम आती है। कभी कभी जो है लोग इनसे प्यार करते हैं, बड़े बहुत ही मिलनसार इंसानियत के मालिक है। और तमाम सामीन हजरात, सामीन के बगैर जो है कोई भी महफिल कामयाब नहीं होती। सामीन का जो है उनकी जो है उनको उनका जमा रहना और शेर व शायरी समझना जो है एक बहुत बड़ी बात है। शायर अपने शेर में कभी कभी अपनी जान भी डाल देता है, कह के महीने कह के दिन जो है गुजारता है, अपना काम धाम धंधा पानी, यहाँ तक के लड़ाई झगड़ा बीवी बच्चे को सब छोड़ के भी जो है वो लिखता है, तो पूरी तरह से अपनी जान डालता है हर एक शेर में। तो उसको समझने के लिए सामीन की जरूरत है, ऑडियंस के बगैर जो है कोई काम नहीं होता। जब तक वो सुनाने दे वो पागल सी तरह घूमता था। मैं माफी चाहता हूँ, हमारे खलील महमूद साहब हमारे हिंदुस्तान के बहुत मशहूर शायर हैं, मगर वो भी लिखते हैं जब तक किसी को सुनाने दें, क्यों ना हो अपनी बीवी क्यों ना हो, सुनाने देते शरार नहीं आता। तो आपने सुना है, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर हमको नहीं सुना है तो आपकी बीवी भी तो सुना है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। इसलिए कि शायर का जो है बड़ी शायरी मेहनत से जो है एक शेर बनता है। हाँ तो शायर को नहीं समझे शायर। खैर ठीक है, तमाम जो है हजरात का, हमारे शकील साहब आ गए थे, हमारे इकबाल साहब, हमारे जो है हुमायूं सेठ साहब, हमारे शफी साहब, सब का एक एक का नाम नहीं ले सकता, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ।